کشتواڑ ہر لحاظ سے ایک تہذیبی اور ثقافتی شہر ہے۔ اس کی تہذیب اور ثقافت سینکڑوں سال پرانی ہے، اور جس طرح ایسے کسی بھی شہر کے مشہور ہونے کے بے شمار حوالے ہوتے ہیں، اسی طرح کشتواڑ کی شہرت کے حوالے سے یہاں کی جامع مسجد بغداد ثانی کشتواڑ کی عظیم ترین عمارت اور عبادت گاہ مانی جاتی ہے۔ پوری ریاست جموں و کشمیر کی مساجد پر نظر ڈالی جائے تو یہ جامع مسجد ایک وسیع اور جدید خطوط پر تعمیر کی گئی چند مساجد میں سے ایک ہے، جو قابل دید اور اہم مقام ہے۔ جب اس مسجد کے بلند و بالا میناروں سے اذان کی صدا گونجنے لگتی ہے تو پورے فضا میں ایک لطیف سی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف سے ناگئیں شو، دوسری طرف سے پیاپارن اور تیسری طرف سے سنتھن اور چنگام درے دعوت نظارہ دے رہے ہیں، تو دوسری طرف جامع مسجد کے میناروں پر چڑھ کر قصبے کشتواڑ کی انگوٹھی میں جامع مسجد کشتواڑ ایک 7 رنگوں والا نگینہ لگتی ہے۔ یہ جگہ سری نگر سے براستہ سنتھن ٹاپ اور براستہ بٹوت بترتیب 195 اور 280 کلومیٹر دور ہے، جبکہ جموں اور کشتواڑ کا درمیانی فاصلہ 232 کلومیٹر ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ کے متصل اور قصبے کشتواڑ کے مشرقی حصے میں واقع اس مسجد عالیہ کو تعمیر کرانے کا سارا کریڈٹ مسلمانان کشتواڑ ہی کو جاتا ہے، جنہوں نے زر کثیر اکٹھا کر کے اس بڑے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ یہ فن تعمیر کا عمدہ نمونہ اوقاف اسلامیہ کشتواڑ کی انتھک کوششوں سے مارز وجود میں آیا ہے۔ تاریخ کشتواڑ کی ورق گردانی کرنے کے نتیجے اور صدیوں سے چلی آئی روایتوں کے مطابق اس دور دراز اور کوہستانی علاقے میں 1650 عیسوی سے 1663 عیسوی کے درمیان پہلی مسجد اس وقت کے رئیس اعظم خواجہ قریب ولد اسماعیل کی زیر سرپرستی تعمیر ہوئی تھی۔ اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد یعنی سن 1664 سے پہلے ہی قصبے کشتواڑ میں چند مسلمان آباد تھے۔ جو پہلی مسجد تھی وہ حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ کی آمد سے پہلے تقریباً 1650 کے آس پاس راجہ بھگوان سنگھ کے وقت میں بنی تھی۔ اس کا نام تھا مسجد غریب۔ تو اس مسجد کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر محلہ جو آج کا ہے اسی میں کہیں وہ مسجد تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ جگہ پر کشتواڑ کی جامع مسجد سن 1221 ہجری میں پہلی بار بنائی گئی تھی۔ مشہور ہے کہ اس مسجد کا کام راجہ عنایت اللہ کے عہد حکومت میں شروع کیا گیا تھا۔ نامور محقق اور شاعر مرحوم نشاط کشتواڑی کے مطابق موجودہ جگہ پر سب سے پہلی جامع مسجد لگ بھگ 1170 ہجری میں بنائی گئی تھی۔ جن بزرگوں نے اس مسجد کو دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ پرانی مسجد میں کشمیری طرز پر لکڑی کا کام ہوا تھا، جبکہ وہ مسجد شریف کافی پرانی اور خستہ ہو چکی تھی۔ پرانی
جو تعمیر تھی اس کے بارے میں یہاں بزرگان یہ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھی ہے کہ یہاں ایک وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، کشمیری کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھی، لیکن اب وہ پرانی ہو چکی تھی اور اس کے صحن میں جو تھا ایک تالاب تھا، اور اس تالاب پر لوگ پانی بھی پیتے تھے اور اس وجہ سے وہاں وضو وغیرہ بھی بناتے تھے۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں مسلمانان کشتواڑ کو جامع مسجد نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، لہذا سن 1941 عیسوی میں مرحوم خواجہ عبدالسبحان اگو کی سرپرستی میں تعمیر کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں اس وقت کے مقامی سرکردہ مسلمانوں میں سے سید غلام محی الدین قادری، پیر سیف الدین، غلام رسول نشاط، حکیم سید شاہ، خواجہ غلام رسول کامگار، سید میر بادشاہ، قاضی یحییٰ شاہ، ملک محمد عبداللہ، ملک امیر اللہ، غلام محمد ٹپل، غلام محمد متو، عبدالغنی دیو، امیر اللہ سیف، غلام رسول گندنا، عبدالعزیز ڈار، سید مقبول شاہ، ملک مختار احمد، خواجہ نصرجو سیف، خواجہ لسجو زرگر، عبدالصمد گگڑو، انور جو ٹپل اور قاضی غلام نبی وغیرہ شامل کیے گئے تھے۔ جامع مسجد کشتواڑ کی اس دوسری تعمیر کا سنگ بنیاد 19 اگست سن 1941 عیسوی کو ڈوڈا کے ایک بزرگ نے رکھا تھا۔ دنیا میں اس وقت پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے حالات تھے، اتنی غربت اور مفلسی کے باوجود اس تیسری جامع مسجد کو تیسرے ادوار میں تعمیر کیا، اور اس پر اس وقت 25,000 روپیہ زر ڈبل خرچ کیا، اور زر کثیر خرچ کرنے کے بعد ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر ہوئی۔ اگرچہ مسجد کی تعمیر اندرونی طور پر سن 1975-1976 میں مکمل ہوئی تھی، تاہم اس سے متعلق کچھ مزید تعمیری کام جو باقی رہ گیا تھا سن 1978 عیسوی تک پائے تکمیل کو پہنچا۔ چنانچہ اس تعمیر سے جڑے ہوئے بزرگ شاعر مرحوم غلام رسول نشاط نے تعمیر دوم کی تاریخ کو اس شعر میں قلم بند کیا ہے۔ چنانچہ یہ دوسری مسجد اپنے دو اونچے اور خوبصورت میناروں کے ساتھ ساتھ قصبے کشتواڑ کے قدرتی حسن میں گراں قدر اضافہ کرتی تھی۔ جامع مسجد کی تعمیر دوم میں جہاں زیادہ تر لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، وہیں اضافی بلڈنگ میں
सीमेंट और लोहे को ही तरजीह दी गई। सन 1969 ईस्वी में उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मरहूम अब्दुल वाहिद क्राई पाक ने बहसियत एडमिनिस्ट्रेटर जियारतों के अलावा इस मस्जिद शरीफ को भी अवकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ की तहवील में ले लिया। इस्लामिया फरीदिया हाई स्कूल किश्तवाड़ की इमारत में वुसअत दी गई और मरहूम हाजी गुलाम रसूल बट पंजाबी को जामे मस्जिद के मुतसिल एक और मस्जिद इमारत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसको हाजी साहब मौसूफ ने बतरीक़े अहसन निभाया। वाहिद साहब क्राय पाक के बाद मरहूम बशीर अहमद किचलू अवकाफ इस्लामिया के चेयरमैन मुंतखब हुए, जिन्होंने जामा मस्जिद के हमाम से लेकर सहन वगैरह तक सुधारने और खूबसूरत व खुशनुमा बनाने में ज़ाती दिलचस्पी ली। किचलू साहब ने हर किस्म के माहिर कारीगर काम पर लगाए। मस्जिद के सहन के साथ शुमाली और जनूबी किनारों पर गुस्ल खाने और वुजू खाने बनाए गए। इनके अलावा एक होटल और 12 दुकानें बनाई गईं, जिनसे मस्जिद की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ था। बदकिस्मती से ये आलीशान मस्जिद 1 सितंबर 2001 को खाकिस्तर हो गई, शहीद हो गई। एक वाहिबिल्ला मचा, लोगों के दर्द व करब की को बयान करना जो है वो लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। इस नाजुक सूरत हाल में मरहूम बशीर अहमद किचलू साहब ने उनकी तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होने के बावजूद आगे बढ़कर रोसाए कस्बा से मशवरा करके जामा मस्जिद शरीफ की तीसरी और नई तामीर का बीड़ा उठाया। वो एक ऐसी मस्जिद बनाने के ख्वाहिशमंद थे जिसकी बदौलत कम अज कम अगली निसफ सदी तक किसी भी तरह की वुसअत दरकार न हो। जामा मस्जिद पुरान 2001 मज शहीद गई, तथ मज वारिया खाने तामीर वारिया रुत तामीर सती यम सात सो नजर आतिश गई, तम सात गो तमाम लुकन मन अख परेशानी पैदा कि तामीर जामा मस्जिद गोनिक सह कत करो पूरा कत करो दोबारा तथ पे तामीर। तथ सिलसिलस मज बीठ ये जोमा इंजीनियर हजरात कारीगर हजरात, तथ मन गो फैसले सह करो आर्किटेक्ट टीम मुकर यम आर्किटेक्ट नक्श दिन डिज़ाइन दिन यथ बारस मज। तम पत कर कंसल्ट कोई 4 आर्किटेक्ट, यमो मज अकिस आर्किटेक्ट यम सुन नाव OP गुप्ता तम सुन गो बइतफाक राय सो डिज़ाइन अप्रूव। तीसरे मरहले में जब इसकी तामीर हुई है 2001 में, जब ये नज़र आतिश हुई है और उसके साथ लोगों के जज्बात जुड़े हुए थे, तो अहलियान इस्लाम ने अपनी जगह एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़े आलम दीन आएँ और इसकी रस्म इफ्तिताह में शामिल हों। तो इसकी इफ्तिताह मरहूम मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब के फ़र्ज़ मौलाना अंजर शाह कश्मीरी साहब ने इसकी रस्म इफ्तिताह की है। बिलाखिर 20 जून सन 2001 बरोज़ जुम्मा बवक्त 11 बजे दिन अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमंद और शेखुल हदीस हजरत मौलाना अंजर शाह कश्मीरी ने मौजूदा जामा मस्जिद का संग बुनियाद सैयद यासीन शाह बुखारी पुंछी, बशीर अहमद किचलू चेयरमैन व वजीर अवकाफ इस्लामिया किश्तवाड़, अलहाज गुलाम कादिर बट चेयरमैन गुनियतुल उलूम इंस्टीट्यूट भटियास भलीसा, मौलाना गुलाम कादिर पुंछी चेयरमैन मदरसा ज़ियाउल उलूम पुंछ, अलहाज गुलाम रसूल बट पंजाबी, गुलाम अहमद सोहरवर्दी सदर तबलीगुल इस्लाम जम्मू व कश्मीर और हजारों लोगों की मौजूदगी में रखकर रस्मी तौर पर तामीर नौ की शुरुआत की। यहाँ पर एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था इस्लामिया स्कूल के अहाते में, तो उसी मौके पर ये इस मस्जिद की बुनियाद पड़ी। और उस वक्त जब प्लान देखा तो
हम जैसे आम लोग ये कह रहे थे जी ये प्लान हो ही नहीं सकता है, इतनी बड़ी मस्जिद को क्या करना है। तो किचलू साहब का मुझे याद है कि वो कहते हैं कि गौड़ साहब कहते हैं ऐसी मस्जिद बनाओ कि 50 साल तक मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़े लोगों को यहाँ। महकमे तामीरात आमा के बनाए गए तखमीना जात के मुताबिक मस्जिद शरीफ का प्लिंथ एरिया मा गुस्ल खाना 10,664.68 मुरबा फुट है, जबकि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 22,849.02 मुरबा फुट हैं। मस्जिद के दो किनारों पर आसमान से बातें करने वाले दो मीनारों की ऊंचाई 100 फुट है। सदर दरवाजे का रुकबा 322 मुरबा फुट है, जबकि 45,560.51 मुरबा फुट रकबे पर सहन और 4 दीवारी फैले हुए हैं। ये सारा तामीराती काम मकामी इंजीनियरों की निगरानी में हुआ। इसका खर्चा जो है तकरीबन 4 करोड़ से तजावुज़ कर चुका है और किश्तवाड़ के बाग़यूर और मुखय्यर इंसानों ने इसके लिए हर तरह से मदद की है। खुसूसन यहाँ की ख़वातीन ने जिस वक़्त मस्जिद शरीफ नज़र आतश हुई तो ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात पेश किए और इस मस्जिद की अपनी एक तारीख़ है, क्योंकि ये वली कामिल हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद ने तामीर की है। तो इस मस्जिद की एक अपनी तारीख़ है। उसके अलावा पूरे ज़िले में ये मरकज़ी जामिया मस्जिद की हैसियत रखती है। जामिया मस्जिद किश्तवाड़ में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनमें बजरी, ईंट, पत्थर और लकड़ी अंदरून ज़िला ही हासिल हुए हैं, जबकि ईंटें उधमपुर और जम्मू, तराशे हुए पत्थर अवंतीपुरा कश्मीर, संगमरमर राजस्थान, वॉल टू वॉल ईरानी कालीन कश्मीर, सिल्वर टाइप क्रिसेंट गुंबद के लिए बारामूला कश्मीर और लोहा जम्मू से मंगाया गया है। इस मरकज़ी जामा मस्जिद किश्तवाड़ के जो है इस पे पूरा जो अभी तक तखमीना जो टोटल खर्च जो आया है वो करीब 5 करोड़ के करीब पैसा आया है। इसमें तमाम किश्तवाड़ के अहलियान इस्लाम ने अपनी हिदाया पेश की, अपने डोनेशन पेश की। तमाम के तमाम जो ज़र जो है इसमें जिन्स के एतबार से कई ने ज़ेवरात, कई ने पैसा अपना पेश किया। उसकी वजह से 5 करोड़ के करीब इस पर खर्चा अभी तक लागत आ चुकी है। और अब जब हम फ़र्श की तरफ चले जाएँ तो फ़र्श जो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर इस इहाता में अक्सर नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, ये फ़र्श ईरान से ख़ास तौर पर मंगाया गया है। और जो पिलर वगैरह पे जो कारीगरी हमें जो दिखती है, ये कारीगरी जो है कश्मीर के बेहतरीन कारीगरान ने की है। और इसके वो जो सर्कुलर स्पेस बनी हुई है, ये सर्कुलर स्पेस जो है मस्जिद अल हराम और मस्जिद अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैटर्न पर जो है कुरान पाक और मुक़द्दस चीज़ों को रखने की जगह बना दी गई। और आखिर में अगर आप देखें, बिल्कुल इमाम साहब के बिल्कुल सर के ऊपर जो है वो जदीद ख़त्म बंदी से इसका जो है वो इसका जो है वो सर्कुलर तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। और उसके बिल्कुल मरकज़ में, इसके सेंटर में जो है एक झूमर लटका हो, जो उसने इस मस्जिद की खुशनुमाई और खूबसूरती के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इजाफत कर रखी हुई है इंशाअल्लाह। ये मस्जिद अपने सरपरस्त मरहूम बशीर अहमद किचलू साहब की यादें ताज़ा करती है, जो बहुत ही कमज़ोर और बीमार होने के बावजूद आखिरी दम तक मस्जिद के तामीरी कामों की निगरानी करते रहे। मस्जिद का काम शुरू हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि किचलू साहब मौसूफ 26 अगस्त सन 2001 ईस्वी को दाई अजल को लबैक कह गए। उनकी वफ़ात के बाद मेंबर हजरात बैठे, उनने मेरा नाम तजवीज़ करके मुझे चेयरमैन मुकर्रर किया और 2001 से लेकर 2008 तक
मैं बजट चेयरमैन काम करता रहा और 2008 में खालिद जहांगीर साहब जो गालबन यहाँ KDA में CEO थे, गवर्नमेंट ने उनको तैनात किया 2009 तक, और 2009 में दोबारा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के दोबारा मुझे बजट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। अलहाज बशीर अहमद किचलू की वफात से मस्जिद शरीफ के इस बड़े प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल कुछ देर तक धुंधलाहट का शिकार रहा। इस नाजुक वक्त में किश्तवाड़ के मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नए चेयरमैन को पूरा इश्तिराक व एतमाद बख्शा और उन्होंने तनदेही से काम लेकर टीम स्पिरिट में रहने को तरजीह दी। इसकी मसलसल जो है वो तामीर व तोसी होती रही है, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान आते रहे हैं। उसमें तनवीर अहमद किचलू साहब हैं, खालिद जहांगीर साहब हैं, और उसके बाद शेख शौकत अहमद सरकुटी साहब हैं। उनके बाद जो है मैंने 2016 में फरवरी में चार्ज संभाला है। मरकज़ी जामा मस्जिद में चूँकि एक जदीद तामीर हुई थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी कमियां लगी, तो मैंने भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, ताकि पिछले लोगों ने अपना जो है दस्ते ताउन पेश किया था। इसमें मज़ीद इजाफत की ज़रूरत है। सबसे पहला जो हमारे एक मस्जिद शरीफ के अंदर एक सुराख था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर कूलिंग और हीटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, उसको जदीद ख़त्मबंदी के पैटर्न पर उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद लाइटनिंग की सिस्टम मस्जिद शरीफ में थी, तो उसमें हमने जकेडा से मिलकर जो है 1000 वाट का एक सोलर पावर प्लांट सेंक्शन करवाया है, जिसकी मालियत 41 लाख है, जो फ्री ऑफ कास्ट मस्जिद शरीफ के लिए वो गिफ्ट करवाई है। उसके बाद अब जदीद तौर पर हमने देखा है कि जो हमारा रमज़ान मुबारक है, उसमें मस्जिद शरीफ की सफ़ों से जो है नमाजी जो है आस्ता आस्ता गायब होते हैं, निकल जाते हैं मस्जिद, क्योंकि सफोकेशन हो जाती है काफ़ी वहाँ पे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें लगा है कि वहाँ पर एक एयर कंडीशन सिस्टम होना चाहिए। उस सिलसिला में हमने ओ जनरल जो जापान सऊदी अरब की कंपनी, उससे रब्ता करके उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसकी मालियत 21.5 लाख रुपए करीब जो है आफ्टर डिस्काउंट हमें मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम पूरे जम्मू कश्मीर में पहली मस्जिद बनेगी जिसमें ये सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम बनेगा। उसके साथ साथ हमें लगता है कि यहाँ पर सर्दियों में चूँकि टेम्परेचर बड़ा डाउन रहता है, यख टेम्परेचर रहता है, यख की हालत में हमें गर्म पानी की सहूलियत का जो है वहाँ मस्जिद में इंस्टॉल करना लाजिम लग रहा था। उस सिलसिले में हमने एक और कंपनी से टाइप करने की कोशिश की है, और वो हमें सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम का जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला के देंगे। मस्जिद शरीफ का जो है काफ़ी सालों से जो है इसमें एक 15 लाख का कर्जा सिलसिलावार चलता आ रहा था। उस कर्ज़ा को जो है हमने आवाम को अपील की थी, अहलियान इस्लाम को अपील की थी कि वही लोग जो है वो मस्जिद के कर्ज़ा को अदायगी के लिए अपना दस्ते ताउन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी ताउन पेश किया, शाना बशाना खड़े रहे, और हमने 15 लाख का जो है कर्ज़ा मस्जिद शरीफ को जो है वो अदा कर देगा। मस्जिद शरीफ को कर्ज़ से आज़ाद कर दिया गया है। और साथ साथ में मस्जिद शरीफ में सफाई के मामला थे, उसमें फुल टाइम बेसिस पर क्लीनिंग ऑपरेशन होते हैं, हर नमाज से पहले और हर नमाज के बाद क्लीनिंग ऑपरेशन होते हैं। उसमें मस्जिद शरीफ को बराबर जदीद तौर पर जो है साफ़ सफाई के इंतजाम के लिए भी एक प्रोजेक्ट उठाने जा रहे हैं हम लोग। अहलियान इस्लाम किश्तवाड़ का एक बहुत बड़ा तकाजा था हमारे अवकाफ इस्लामिया के साथ, कि जब भी अवकाफ इस्लामिया जो है उसकी जो है वो आमदन और खर्च का गोशवारा नहीं छपता है। उस सिलसिला में हमने ज्वाइन करते ही पहले माह से ही जो है हमने गोशवारा जो है छपवाना शुरू कर दिया। उसको बराबर हर कंस्पिस प्लेस पर भी, जामा मस्जिद के अंदर भी और ज़ियारत में भी इसको चस्पान किया जाता है, ताकि इसमें एक पूरे निज़ाम में एक शफाफियत लाई जाए और इसमें एक हरकत लाई जाए। उसके साथ साथ जो हमारे मीनार हैं जामा मस्जिद शरीफ के, वो मीनार जो है अंदर से अब इनकी प्लास्टरिंग, रेनफोर्समेंट, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरत है, उसकी जो है वो स्टेयर केस बनवाना ज़रूरत है, उसकी रेलिंग करवाना ज़रूरत है। उस सिलसिले में हमने एक प्रोजेक्ट उठा रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद काफ़ी देर तक मकामी ज़रूरत को पूरी करती रहेगी।